ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਬੁੱਕ ਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੀ ਕੁਛ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ +2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਓਬਟੇਨ ਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਫॉर f(x) = x² ਫਰੋਮ -π to π। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੈਂਸ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੈਂਸ ਸ਼ੋ ਦੈਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਡਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਰਾ +2 ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ f(x) = ਸਮੇਸ਼ਨ a0/2 ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਮੇਸ਼ਨ n goes from 1 to infinity an cos nπx/L। ਪਹਿਲਾਂ L ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। L ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ -π to π, ਤਾਂ L ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਮੀ ਲੈਂਥ b -a/2। ਇਹ ਸੈਮੀ ਲੈਂਥ L ਹੋਊਗਾ। ਹੇਅਰ L π ਹੋਊਗਾ ਪਲੱਸ ਸਮੇਸ਼ਨ n goes from 1 to infinity bn sin nπx/L। ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਐਂਡ ਉਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ a0 ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ। a0 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/L ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ a to b, ਜੋ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, f(x) dx। ਇਹ a0 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। f(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x² ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਈਵਨ ਔਡ ਆ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ -a to a ਲਿਮਿਟ ਪਈ ਹੋਵੇ, -a to a ਲਿਮਿਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆਊਗਾ ਜੇ f of -x = -fx, f of x। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ f(x) is odd, that is f(x) is odd ਜਾਂ f is odd, ਸੌਰੀ, ਜੇ f odd ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ 2 times 0 to a f(x) dx ਹੁੰਦਾ। if f of -x = fx, that is ਇਸ ਕੇਸ f is even ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। -x ਭਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ -x ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਡ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਡ ਕਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ। ਜੇ
माइनस बाहर ना आया एब्जॉर्ब कर लिया, फिर निचला 0 करके 2 टाइम्स कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला सी, होर भी फॉर्मूले 7 प्रॉपर्टियां सीगा डेफिनेट इंटैगरल दी। चलो एक प्रॉपर्टी आपां जिहड़ी लोड़ हैगी वो देखीए थोड़ा इहनूं समझण वास्ते कि ऑड ईवन किवें ने। जिमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर लैनी है, जिमें इस केस च इनू माइनस एक्स भरांगे, ये माइनस एक्स का स्केयर बन जाएगा, ये एक्स स्केयर हो जाएगा। ये फंक्शन जो है सेम आ गया, इनू आपां कहांगे कि यह ईवन आ। दूजा जे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ जाए तो ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इस केस ये बन जाएगा ऑड फंक्शन। ये जरूरी नहीं होंदा कि हमेशा फंक्शन ईवन होवे चाहे ऑड होवे, कई फंक्शन अजिहे भी होंदे ने जो नाइदर ईवन ने नॉर ऑड ने। जिमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्केयर, जे आपां एफ ऑफ माइनस एक्स कढ़ीए ये माइनस एक्स आऊगा, ये प्लस एक्स स्केयर आ जाए। चैक कर लियो, ये प्लस हो जाएगा। हुण ना तो यह सीधा एफ एक्स इक्वल, देखो एफ एक्स के बराबर नहीं है, ईवन नहीं है। जे ये चो माइनस कढ़ांगे बाहर फिर भी एफ एक्स नहीं बनता है, ये कुछ होर बनता। तो ये फंक्शन जो है वो नाइदर ईवन नॉर ऑड है। चलो हुण ये क्योंकि अपना ये इंटीग्रेशन आ मेन, जिन्नी इंटीग्रेशन सौखी तरीके नाल आपां सॉल्व करांगे उन्ना गलती होने की संभावना घट जाएगी, गलती होने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी अपने को। इस करके फिर चलो ये सीधा कर लेने आपां। फिर ये आ गया अपने को, ये 2/पाई आ गया 0 to पाई एक्स स्केयर डी एक्स। इत्थे कुछ लिखने लोड़ नहीं कि बिकॉज एक्स स्केयर इज़ ईवन फंक्शन, कुछ नहीं पाना है क्योंकि +2 का कंसैप्ट आ, सीधा लिख सकते हैं आप। लिख दोगे जे रीजन पाना तो भी ठीक है, नहीं रीजन पाओगे तो भी ठीक है। छोटी क्लास के कंसैप्ट आप सीधे लिख सकते हैं। हम ये इंटीग्रेशन की आऊगी 2/पाई एक्स क्यूब बाई 3 0 to पाई 2/3 पाई क्यूब पाई, ये कट गया, ये बन गया 2 पाई स्केयर बाई 3। तो ए नॉट का आंसर आप लिख लेने साइड से, लोड़ पेगी। ए नॉट जो है ये 2 पाई स्केयर अपॉन 3 आ गया। हुण इसी तरीके नाल आपां ए एन कढ़ांगे जी। ए एन कढ़ांगे, इस तो बाद नाउ ए एन जो है इसकी वैल्यू होगी 1/L माइनस पाई टू पाई। पहला एफ एक्स हुंदा, फिर कॉस हुंदा n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। मतलब ये है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एक्स स्केयर कॉस एन एक्स डी एक्स। हुण ये माइनस ए टू ए है लिमिट, ए च माइनस एक्स भर के देखते हैं, ए भी माइनस एब्जॉर्व कर लेगा, कॉस भी माइनस एब्जॉर्व कर लेगा। ओवरऑल फंक्शन की बनेगा, माइनस बाहर नहीं आऊगा, तो ओवरऑल फंक्शन की बन गया है ईवन। तो इस केस फिर आप इनू इदां लिख सकते हैं 2/पाई 0 to पाई एक्स स्केयर कॉस एन एक्स डी एक्स। ये आ गया। हुण इस तो बाद मोस्टली आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करी सी। हुण ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करांगे आप, ये 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होएगी जी।
फिर इंटीग्रेशन बाय आइलेट के अकॉर्डिंग करांगे जी। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सैकेंड फंक्शन हो गया, तो ये बन गया पहला फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड माइनस इत्थे आ जाएगा 0 to पाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड। ये आ गया। फिर 2/पाई ये तो आप ही रख लिया x² sin nx अपॉन n 0 to पाई। इस 2 चो मैं ये फर्स्ट फंक्शन है सारा, ये हूँ सारा सैकेंड फंक्शन हो गया। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं। पहला फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड n² आ जाएगा नीचे, दोबारा इंटीग्रेशन करांगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड। हुण इत्थे थोड़ा जिहा गल्लां ध्यान नाल करनियां ने, इंटीग्रेशन विच भी सीगा। इहदी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कीती हैगी आ तां आह टर्म ब्रैकेट दे विच आऊगी। हुण दोबारा फिर इत्थे 0 to पाई आना सी, दोबारा फिर किया 2/पाई x² sin nx, ये भी सारा ब्रैकेट च सीगा अपॉन n, ये 0 to पाई आ गया माइनस 2x माइनस cos nx अपॉन n², ये भी 0 to 2 पाई आ गया, 0 to पाई आ गया। ये माइनस माइनस प्लस कर लिया 2, यदि इंटीग्रेशन 2 का बाहर आ गया, कॉस की इंटीग्रेशन फिर साइन हो जाएगी माइनस साइन nx अपॉन n², ये 0 to पाई, ये आ गया। ब्रैकेट बंद हो जाएगी। बाकी उमें लिमिटा भरांगे जी, अगे सॉल्व करते हैं आप। हुण इत्थे गल समझाउणी हैगी आ, जे बाय चांस उरे x³ हुंदा फिर 3 बारी इंटीग्रेशन में पार्ट्स होनी सी, फिर होर लंबा चला जाता। जे बाय चांस इत्थे x की पावर चलो x की पावर 4 हुंदा फिर ये 4 बारी इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स होने सी, इस तो दुगना लंबा जाना सीगा। इस तो काम डबल फायदा अपना, जिन्ना कम लंबा होएगा उन्नी गलती होने की प्रोबेबिलिटी जिहड़ी हैगी वध जाएगी। तो यही चीज़ करनी आ, यह एक डायरैक्ट तरीका होंदा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, मतलब आपां एक स्टैप विच ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आंसर कड्डांगे। जिवें उरे स्केयर कीता सीगा, इहदा एक स्टैप विच ही आपां आंसर बनावांगे। आह वाला क्वेश्चन जिहड़ा है वो जिन्ना मर्जी लंबा होवे जी, चाहे x की पावर 4 होवे चाहे x की पावर 10 होवे, इहदा नालों ये 10 बारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, इन्हूं एक स्टैप च ही आपां आंसर कड्डांगे। यह मैथड जो है जिन्हों ने +2 तो बाद कॉम्पीटिशन ऑब्जैक्टिव की तैयारी करी होवे उहदे च मैथड आउंदा हैगा जी। तो वह मैथड है किवें, वो गल ध्यान रखनी है। तो वह मैथड मैं करवा लग्या जी, वो किवें मतलब फिर आप इदां नहीं करांगे जिवें मैथड मैं करवा रहा उवें करांगे जी। वो मैथड है किवें, वो ध्यान रखना। देखो आप एक स्टैप च आंसर बनावांगे। पहला 2/पाई बाहर आ गया, ये है कि जिहड़ा फस्ट फंक्शन आ, पहला स्टैप तो स्टार्टिंग तो उदी होगी, पहला फस्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड, पहला काम तो उवें ही है, फस्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड। हुण इहनूं छड्ड देना आपां, ये फस्ट फंक्शन आ जी, ये सैकेंड फंक्शन आ, इहनूं छड्ड देना। पहला स्टैप तो स्टार्ट तो उत्थे ही करना कि फस्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड, फस्ट स्टैप बन गया अपना। इहनूं छड्ड देना, फिर इत्थों देखना आपां कि फस्ट फंक्शन का डेरीवेटिव करना, सैकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी। ये गल समझ आ रही हो, फस्ट का डेरीवेटिव सैकेंड की इंटीग्रेशन, दोबारा फस्ट ये फस्ट हो गया, इसका फिर डेरीवेटिव करना 2,
ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ माइनस sin nx अपॉन n स्क्वायर। पहला स्टार्ट आपां इनिशलाइज तो उत्थों ही करना हैगा कि फस्ट एज इट इज़ डेरीवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड ये आ गया। इस तो बाद इन्हूं छड्ड देना जी फस्ट एज इट इज जो फस्ट हैगा डेरीवेटिव करी जाना। पहला फस्ट वाला डेरीवेटिव किया फिर डेरीवेटिव किया जिहड़ा सैकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन कर देने। पहला इंटीग्रेशन की आ जाऊगा दोबारा इंटीग्रेशन की थोड़ी गलती हो गई जी इत्थे क्यूब आना सी इत्थे भी क्यूब आऊगा जो आप इंटीग्रेशन करांगे एक n होर नीचे आऊगा जी। तो पहला फस्ट एज इट इज़ हो गया अपने को सैकेंड की इंटीग्रेशन होगी फिर फस्ट का डेरीवेटिव करना सैकेंड की इंटीग्रेशन करती साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन जी हैगी है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन n स्केयर आ गया नीचे फिर फस्ट का डेरीवेटिव कर देना फिर सैकेंड की इंटीग्रेशन करिए। यही प्रोसैस आप रिपीट करी जाना। हुण अगे इहदा डेरीवेटिव करांगे तो कितना होगा जीरो। जे जीरो हो जाएगा डेरीवेटिव अगे चाहे इंटीग्रेशन जो मर्जी आवे अगे टर्मां सारियां जीरो होणगी अगे फिर डेरीवेटिव करांगे फिर जीरो मतलब यह प्रोसैस उरे तक ही जाएगा अगे प्रोसैस खत्म हो जाएगा। दोबारा देख लो पहला तो चलो ये चीज़ इत्थों बनी आ फिर फस्ट का डेरीवेटिव किया 2x आ गया सैकेंड इंटीग्रेशन करती फिर यदा डेरीवेटिव किया 2x का 2 आ जाएगा फिर सैकेंड की फिर इंटीग्रेशन करती अगे क्यों नहीं चलाया प्रोसैस आपने खत्म हो जाएगा बिकॉज यदा डेरीवेटिव अगे जीरो हो जाएगा टर्मां सारियां जीरो हो जाएगी। तो गौर ना देखो उस तो बाद पहली गल ये है कि फिर उस तो बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस पाने पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस पाई जाओ। गौर ना देखो फिर अगे लिमिटां भर देवांगे 0 टू पाई इक्को चीज़ आ देखो आही बनया वो कोई फर्क नहीं पैंदा। आपां लिमिटां इत्थे इकट्ठियां पातीआं इत्थे कल्लियां कल्लियां पाईयां होईयां ये फर्क नहीं पैंदा। फस्ट टर्म चैक कर लो सैकेंड टर्म चैक कर लो थर्ड टर्म चैक सेम ही है। एक मैं होर क्वेश्चन करवाउणा ये मैथड समझाने वास्ते जिवें एक्स की पावर 4 द एक्स की पावर 6 ले लो ई की पावर 2x ये इंटीग्रेशन करनी है अपने एक स्टैप ही आऊगा। देखो आंसर पहला फस्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड माइनस डेरीवेटिव फस्ट इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड फिर प्लस पाना डेरीवेटिव ऑफ फस्ट इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड फिर माइनस पाना डेरीवेटिव ऑफ फस्ट फिर इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड इदां चली जाएगी। एक स्टैप से आंसर आएगा सारा। पर इस मैथड की डिसएडवांटेज आ ये मैथड इदा नहीं कि कहांगे कि आप हरेक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होएगा। बेसिक मैथड तो ही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर यह वाला मैथड जिहड़ा हैगा हरेक क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हैगा। इस गल समझ आ रही होवे जिवें आपां आ न्यूमेरिकल देखिए इहनूं इत्थे पा देना इंटीग्रेशन ई दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स मान लो ये फस्ट फंक्शन होगा आइलेट अकॉर्डिंग सैकेंड फंक्शन होगा। पहला फस्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड माइनस डेरीवेटिव ऑफ फस्ट इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड। हूँ शायद गल समझ आ रही होगी इत्थे एप्लीकेबल क्यों नहीं हैगा जे गल दिमाग च आ रही हो माइनस बी स्केयर कॉस बी एक्स जेडे समझ रहे होणगे उन्होंने गल समझ आ जाएगी कि ये प्रोसैस एप्लीकेबल क्यों नहीं है ये फार्मूला इस क्वेश्चन एप्लीकेबल क्यों नहीं है बिकॉज डेरीवेटिव जिहड़ा है ये कदे भी खत्म नहीं होना ਇਹਦਾ ਚੱਲੀ जाऊगा क्वेश्चन तो फायदा की है फार्मूले का। फार्मूला ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ कि अपना काम सौखा हो जाए सौखा तो होने का काम लंबा चला गया लंबा किवें उत्थे सौखा क्यों चला गया बिकॉज एक्स स्केयर का डेरीवेटिव हौली हौली खत्म हो गया सी खत्म होने करके अपना आंसर आ गया। पर इत्थे कॉस का साइन बन जाएगा साइन का कॉस का साइन का कॉस इदा ही चली जाऊगा ये कदे खत्म नहीं होना। जे कदे खत्म नहीं होना तो उरे अपने को ये वाला फॉर्मूला अपलाई करने का फायदा कोई नहीं है। जो सिंपल जी गल लै लो इनू फिर किवें करांगे जिवें आपां +2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते थे ये क्वेश्चन भी देखांगे आपां
कि दो बारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होंदी सी, फिर आई बनता सी दोनों पासे, ट्रांसपोजिंग करते सी। चलो देखांगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये कदों एप्लीकेबल आ, जदों अपने कोल एक्स अलजैबराइक टर्म आ जाए विच, क्योंकि अलजैबराइक टर्म का ही डेरीवेटिव हौली हौली खत्म हो जाएगा। इस करके जो अलजैबराइक टर्म होवे तो उस केस दे विच आपां ने ये फॉर्मूला अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं करना आपां ने। चलो देखो, ये फिर अपने कोल ये फॉर्मूला अप्लाई कर लियो। ये फॉर्मूला अप्लाई करन तो बाद वो लिमिटां भरांगे आपां। लिमिटां इकट्ठियां भर दो, इकट्ठियां मतलब किवें, इकट्ठी रहन दो। लिमिट इदां भरनी है, पहला कोशिश करो यही तरीका रखो, अदरवाइज उलझे होंगे। मोस्टली बच्चे करते कि ने पहला पाई नूं सारे च भरते हैं, फिर माइनस पा के जीरो भरते हैं सारे। इदा तुसीं आप कन्फ्यूज हो जाओगे जी। तो तरीका वधिया तरीका यही है कि पहला पाई ए च भरो, माइनस जीरो, कल्ला कल्ला सॉल्व करो। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरो, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जे कल्ला कल्ला भरांगे तो सौखा रहूगा। वो भर रहे हैं जिमें 2/पाई, पहला अपर लिमिट पुट की ये पाई स्केयर साइन एन पाई बटा एन, लोअर लिमिट भरी जीरो हो जाएगा। जे जीरो भरिया, जीरो साइन जीरो 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 हो गया। हुण ए च भरिया माइनस माइनस प्लस कर लवो, 2 कॉस एन पाई बटा एन स्केयर अपर लिमिट, माइनस लोअर भरी ये 0 इंटू कॉस 0 1, ये जीरो हो जाएगा जी। माइनस बाहर रख लो, ये भरिया आपाने 2 साइन एन पाई बटा एन क्यूब, माइनस जीरो भरिया साइन 0 0 होंदा, ये अपना आंसर है। हुण ये किता सी साइन एन पाई 0 होंदा जी, ये लास्ट लैक्चर च पढ़िया सी आपां ने। आ 0 हो जाएगा सारा। कॉस एन पाई जो होंदा है ये -1 की पावर एन होंदा है, तो साइन एन पाई 0, ये पाई पाई कट जूगा जी। ये बन गया 4 -1 की पावर एन अपॉन एन स्केयर। ये एन की वैल्यू आ गई। तो नवीं गल की आई हैगी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपां सीधा इदां कर सकते हैं। जिन्ना ये आपां फॉर्मूले यूज़ करांगे उन्नी प्रैक्टिस होगी, उन्ने ही आपां नूं फॉर्मूले याद होणगे जी। हुण BN कढ़दे आपां इस तो बाद। हुण देखियो BN वाला काम सौखा हो जाएगा अपना। BN हो गया 1/L माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। ये बन गया जी अपने को माइनस पाई टू पाई एक्स स्केयर साइन एन एक्स डी एक्स 1/पाई। ए माइनस एब्जॉर्व करेगा, ए माइनस बाहर कटेगा, ओवरऑल माइनस बाहर आ जाएगा। ये फंक्शन ऑड है जी, तो काम 0 हो गया। ये प्रॉपर्टियां ताही हैल्पफुल ने, काम सौखा हो जाता है। सो ए नॉट भी निकल गया अपने को, AN भी कढ़िया आपां, BN भी निकल गया। हुण सारे आपां फोरियर सीरीज भरांगे। जो नंबरिंग 1 सीगी पुट इन 1, ये 1 च भरांगे आपां सारियां वैल्यूज़। इत्थों आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू की है एक्स स्केयर एफ एक्स ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन गोज फ्रॉम 1 to infinity AN cos nx प्लस 0 साइन। ये तो टर्म सारी 0 हो जाएगी जी। तो ये बन गया एक्स स्केयर इक्वल टू पाई स्केयर बाई 3 प्लस 4 कॉन्स्टेंट बाहर काढ़ लो, एन गोज फ्रॉम 1 to infinity। ये आ गया।
ਇਹ 'ਚ कॉन्स्टेंट किहड़ा जी समेशन एन उपर आ, एन नहीं बाहर निकलो, एन वेरीएबल। चलो ये अपनी फोरियर सीरीज़ आ गई। जे कल्ली फोरियर सीरीज़ पूछी गई होवे तां उरे तक सॉल्व करना आपां। एक तरीका होर क्या सीगा, जां आपां इहनूं समेशन खोल के भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके ठीक नहीं, इहनूं समेशन खोल के भी आपां लिख सकते हैं। हुण अगे उन्हें कुछ सीरीज़ जो हैगियां ने वो प्रूव करने वास्ते कहा, जिवें फस्ट पार्ट हो गया, सैकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट, ये प्रूव करने वास्ते की सीरीज़ उन्हें। ध्यान रखियो जो एक्स सीगा वो माइनस पाई तो पाई दे विच सीगा। हुण सीरीज़ जो है किवें बनाउणियां ने, उहदे वास्ते पहला मैंडेटरी है, जरूरी है जी ये कि ये समेशन खोलना पैना। जिथे सीरीज़ बनाने वास्ते कई होण जिवें 3 पार्ट शो करने, उहदे वास्ते जरूरी है कि पहले समेशन खोलने पैणगे अपन सारे। ये समेशन जो है वो आपां खोल रहे हैं जी। पहला 1 भरिया -1/1 स्केयर कॉस एक्स, एन नूं 1 भरिया जी। तो कोशिश कराया करो जे एन स्केयर है वैसे 1 का स्केयर 1 होएगा, पर 1 का स्केयर 1 स्केयर ही पा लिया करो, क्योंकि जो सीरीज़ आपको फाइंड करने वास्ते कई गई होंदियां ने उस स्केयर इदां ही हुंदा। ये खोलना करो। फिर 2 भरिया -1 की पावर 2, ये प्लस हो जाएगा, नीचे 2 का स्केयर इदां ही रहन देवांगे, ये 2x बन गया। 3 भरिया माइनस हो जाएगा, अगे 4 भरिया ये आ जाए। बस 3-4 टर्मां बहुत ने अपनी जिन्नियां पुछियां उन्होंने, ये चीज़ आ गई। इस तो बाद ये चों चाहे चलो इदां ही पे रहने दो, माइनस कॉमन आप नहीं करते, ये अपनी आ गई। हुण सीरीज़ जो है वो बनाउणियां किवें ने, यह गल मेन इंपॉर्टेंट है। जिवें पहली सीरीज़ की बनाउणी है, मैं लिख रहा साइड ते। पहली सीरीज़ बनानी है 1/1 स्केयर, 1/2 स्केयर, 1/3 स्केयर अप टू सोन, इनू पाई स्केयर बाय 6 शो करना। ये पहली सीरीज़ है। दूजी सीरीज़ बनानी है 1/1 स्केयर -1/2 स्केयर प्लस 1/3 स्केयर माइनस अप टू सोन, इनू पाई स्केयर बाय 12। पहला मैं सैकेंड सीरीज़ बना रहा, ये सौखी है, फस्ट बाद चो बनावांगे, फस्ट आप बाद विच करांगे। हुण ये डिड्यूस बनाउणा किवें आप इहदे विचों वो देखो। ये करना की हुंदा कि जो सीरीज़ हुंदी है इहदे विच आपां कुछ एक्स की वैल्यू भरनी हुंदी है, एक्स की वैल्यू कुछ भरनी हुंदी है। आपां ये वैल्यू इदां भरनी होंदी है एक्स की, ये कि जो आपां नूं पुछया गया है सीरीज़, जिहड़ी सीरीज़ आपां नूं पुछी गई है वो सीरीज़ बन जाए। किवें जे आपां पहली गल ये पहला पॉजिटिव आ रहा फिर नैगेटिव पॉजिटिव, पहली गल इस माइनस कढ़ते हैं बाहर आपां, फिर होर समझ आ जाएगा। एक्स स्केयर इक्वल टू पाई स्केयर बाय 3 माइनस कढ़ लिया बाहर, 1/1 स्केयर कॉस एक्स, 1/2 स्केयर कॉस 2x प्लस 1/3 स्केयर कॉस 3x माइनस 1/4 स्केयर कॉस 4x प्लस 1। हुण देखो ध्यान, जिहड़ी सीरीज़ आपां नूं पुछी गई हैगी आ, इहदे विच आपां एक्स की वैल्यू इदां भरनी है, एक्स अपने हत्थ है, एक्स इदां वैल्यू भरनी आ कि जिहड़ी सीरीज़ पूछी गई है वो सीरीज़ बन जाए। जिवें सौखा देखो, एक्स नूं 0 भर दो, फिर की बन जाऊगा जी cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 सारा बन जाएगा। अंदर की बचेगा, अंदर की बचेगा 1/1 स्केयर -1/2 स्केयर प्लस 1/3 स्केयर माइनस 1 स्केयर, बिकॉज सारे cos 0 1 हो जाएंगे, आही सीरीज़ नहीं बन जाएगी। यही आप डिसाइड करना ये कि जिहड़ी वैल्यू हैगी आ एक्स की आपां किदां भरीए, किहड़ी भरीए, कि वैल्यू जो है वैल्यू भरन तो बाद जो सीरीज़ है जो आपां नूं पुछी गई है उन्हां मैच करनी। ये गल मेन इंपॉर्टेंट है ये। तो कोशिश करनी है कि जिहड़ी वैल्यू भरनी है, दूजी गल जिहड़ी वैल्यू भरनी है
ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪਾਈ 'ਚ 0 ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਧਰ ਵੀ 0 ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, 0। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ x ਸਕੇਅਰ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ f ਆਫ x ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਾਈ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 3 ਮਾਈਨਸ 4। ਇਹ 0 ਭਰਿਆ, 1 ਅਪੋਨ 1 ਸਕੇਅਰ, 1 ਅਪੋਨ 2 ਸਕੇਅਰ, cos 0 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये चली जाएगा। फिर ये वैल्यू कढ़ लवांगे, ये टर्म ये वैल्यू कढ़नी सीरीज की, ये टर्म उधर ले जाएंगे नैगेटिव हो जाएगी, -4 चक के नीचे ले आवांगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 12। ये चीज़ बन गई। ये जिहड़ा पार्ट पूछे सर आंसर आ गया। जिहड़ी गल इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू दो गल्लां ने कि वैल्यू इदां भरनी है कि सीरीज़ बन जाए, तो वैल्यू जिहड़ी है वो जो इंटरवल दिता है वो विचों भरनी है। हुण नैक्सट फस्ट पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखो किवें। ये तो पहले पार्ट का अपना आंसर आ गया। ਇਹਨੂੰ मैं लिख रहा इत्थे कि ये एफ ऑफ एक्स फर्क नहीं पैंदा, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ही है, पर यह जरूरी है आपां नूं लिखना नैक्सट पार्ट वास्ते। किवें हुण नैक्सट पार्ट की सी सीरीज़ अपने कोल, जिहड़ा फस्ट पार्ट सी 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर, इनू पाई स्क्वायर बाय 6 लैके आउणा, पाई स्क्वायर बाय 6 ये बनाउणा। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ डिसाइड करते हैं ਆਪਾਂ कि ਕਿਹੜੀ वैल्यू भरीए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि सारे प्लस प्लस ਤੇ हो जाण। ਤਾਂ गौर ਨਾਲ देखो ਇਹਦੇ 'ਚ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ वैल्यू पाई भरांगे ਆਪਾਂ x ਨੂੰ। cos पाई ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, जो cos n पाई ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੁੰਦਾ। cos पाई -1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, cos 2 पाई 2 भरिया 1 ये पॉजिटिव, ये टर्म नैगेटिव रहेगी। 3 पाई भरिया -1 ये नैगेटिव आ जाएगा, 4 पाई भरिया पॉजिटिव ये नैगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल की बनेगा जे रफ च कर रहे हैं सॉल्व, जे पाई भरांगे तो कितना बनूगा -1 स्क्वायर नैगेटिव, अगे -1/2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर -1/स्क्वायर, आ चीज़ बनेगी। इको चीज़ नहीं है, ये चो माइनस कॉमन कढ़ लवांगे प्लस ही बन जाएगा सारा। तो ये डिसाइड कर लिया आप कि ये पुट करांगे पुट एक्स इक्वल्स टू पाई। हुण ये गल जिहड़ा हुण फोरियर सीरीज़ का जो कंसैप्ट आ वो इंपॉर्टेंट आ, वो इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है कि जे तो अपने कोल ए बी इंटरवल होवे, ये गल समझनी है ध्यान नाल। जे ए बी इंटरवल अपने को जे आप वैल्यू विच वाली लै रहे हैं कोई ये जिमें -पाई अते पाई सीगा, ये वैल्यू की है 0, विच वाली वैल्यू लै रहे हैं आप 0 ये विच, जे विच वाली वैल्यू लै रहे हैं आप विच वाली वैल्यू आप लै रहे हाँ तो डायरैक्ट वैल्यू भर दो ये जिमें पिछे पर असीं ये x 0 भरता सी। पर जे आप इनू बाउंड्री कहने हैं, ए बी नूं कहने आप बाउंड्री वैल्यूज़, ये बाउंड्रियां वाली वैल्यूज़ ने, बाउंड्री ये किनारे ते पईयां ने, बाउंड्री हुंदा किनारा, ये किनारे ते पईयां एज ते पईयां वैल्यूज़। तो ये वैल्यू जिहड़ियां हैगियां ने, जिवें मैं उरे एक्स नूं पाई कह रहा कि एक्स नूं पाई भरना, तो डायरैक्ट इहदे विच एक्स नूं पाई नहीं भरना। ये फोरियर सीरीज़ का दूजा कंसैप्ट आ, पहला कंसैप्ट का फॉर्मूला सी, दूजा कंसैप्ट जे अपने कोल वैल्यूज़ बाउंड्री च आ रही ने तो डायरैक्ट नहीं वैल्यू भरनी, ये गल इंपॉर्टेंट आ। फिर वैल्यू भरनी किवें आपां ने,
ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਫ ਐਕਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਏ ਬੀ ਇੰਟਰਵਲ, ਚਾਹੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਐਫ ਆਫ ਏ ਕੱਢਣਾ, ਬਾਊਂਡਰੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਐਫ ਆਫ ਏ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਏ ਭਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਭਰਨਾ ਐਫ 'ਚ, ਏ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਬੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਭਰਨਾ, ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਟਾ 2 ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਭਰਨਾ, ਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਏ ਪਾਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਪਾਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਥੋਂ ਏ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਏ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਊਂਡਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੋਨ 2। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲਿਮਿਟ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਨੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 2 ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ, ਬਸ 2 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ। ਲਿਮਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਐਫ ਆਫ ਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਐਫ ਐਕਸ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਇੰਟਰਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਏ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ, ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੋਨ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਆ ਬਸ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੇ 2 ਪਲੱਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਭਰਨਾ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਭਰਨਾ। ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਨਾ ਪਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਫਿਰ 'ਚ ਪਾਈ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੋਨ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਪਾਈ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਭਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਭਰਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਪੋਨ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਪਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 2, ਇਹ ਪਾਈ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰ ਦਈਏ ਪਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰ ਕੇ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਭਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਭਰਨੀ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ, ਤਾਂ
भरता ਆਪਾਂ ਨੇ देयरफॉर ये बन गया एफ ऑफ पाई, मैं इदा पा रहा, इत्थे आ गया पाई स्केयर बाय 3 माइनस 4, ये वैल्यू भरी आप -1/1 स्केयर -1/2 स्केयर -1/3 स्केयर -1/4 स्केयर अप टू सो ऑन। ये बन गया अपने कोल पाई स्केयर बाय 3, बाकी सॉल्व करांगे आप ही आंसर बन जाएगा। ये आ जाएगा +4 माइनस कॉमन कर लिया 1 स्केयर 1/2 स्केयर 1/3 स्केयर 1/4 स्केयर, ये आ बाकी सॉल्व कर लवांगे। इन्हूं इधर ले गए आप, ये आ गया 2 पाई स्केयर बाय 3 इक्वल टू 4, 1/1 स्केयर 1/2 स्केयर 1/3 स्केयर प्लस 1/4 स्केयर, ये कट गया जी, ये टर्म इधर आ जाएगी जी। तो दिस इंप्लाइज ये आ गया 1/1 स्केयर 1/2 स्केयर 1/3 स्केयर प्लस 1/4 स्केयर इक्वल टू पाई स्केयर बाय 6, ये बन गया। ये फस्ट पार्ट का आंसर है। तो ये कंसैप्ट ये है जो बाउंड्री वैल्यूज़ आप भरनिया ने तो वो फॉर्मूला यूज़ करना। अगे तीजा पार्ट पूछे उन्हें, थर्ड पार्ट किमें करांगे। नाउ जिहड़ा फस्ट पार्ट हैगा वो आपां हुणे प्रूव किया जी 1/1 स्केयर 1/2 स्केयर 1/3 स्केयर 1/4 स्केयर, एक टर्म मैं होर पा रहा 1/5 स्केयर, ये पाई स्केयर बाय 6 है फस्ट पार्ट। सैकेंड पार्ट प्रूव किया हैगा अपने 1/1 स्केयर -1/2 स्केयर प्लस 1/3 स्केयर माइनस 1/4 स्केयर प्लस 1/5 स्केयर अप टू सो ऑन पाई स्केयर बाय 12। आ दो फॉर्मूले आपने प्रूव किए। इतने कोई फर्क नहीं पैंता, प्लस पा लवो चाहे माइनस पा लवो, ये पहला पढ़िया है जी। चलो आ दो आ गए। हुण एक तरीका हो रहा कि सीरीज़ किदां निकलती होंदी है, इन्हों ऐड प्लस माइनस करके तीजी सीरीज़ बन जाएगी जे ऐड कर दी है। क्योंकि थर्ड सीरीज़ देखोगे, थर्ड सीरीज़ कलियाँ ऑड टर्म्स ने 1/1 स्केयर 1/3 स्केयर प्लस 1/5 स्केयर प्लस पाई स्केयर बाय 8 कलियाँ और ऑड टर्म्स ने। तो लग रहा है कि अपना ऐड कर दिए ईवन वाले टर्म्स कैंसल हो जाएंगे। मतलब ये तरीका भी ध्यान रखना, इदा नहीं कि हरेक वैल्यू जो है वो वैल्यूज़ पुट करके आएगी, आपस में प्लस माइनस करके भी आंसर बन सकता। इन्हों आप ऐड कर लवांगे, इस तो बाद इन्होंने ऐड किया जी, एडिंग वी गेट अपने को आ जाएगा जी, मैं सीधा लिख रहा 2 टाइम्स बन जाएगा सारा, ये कट गया 1/1 स्केयर, ये 2 टाइम्स आएगा जी, 2 कॉमन कर लिया, ये भी 2 टाइम्स आएगा, 2 बाहर कटिया है, इनू ऐड कर लो कितना बनेगा 12 पाई स्केयर बाय 4। चलो चेक कर लिए जो भी आ गए। फिर यदा आंसर आ जाएगा अपने को 1/1 स्केयर 1/3 स्केयर 1/5 स्केयर अप टू सोन इक्वल टू पाई स्केयर बाय 8। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इदा बनेगा जी, जिहदे विच आपां नूं सीरीज़ रिड्यूस करने वास्ते कहा गया होगा। अगे नैक्सट क्वेश्चन करना आप इस तो बाद, वो देखो ਉਹਦੇ 'ਚ नवा कंसैप्ट कोई नहीं है जी, बस सिंपल कली इंटीग्रेशन। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ इंटीग्रेशन वाला कि ਅੱਜ नवा किया फार्मूला कि जिन्ना इंटीग्रेशन का पार्ट सौखा हो जाए वो यूज़ नहीं होगा, ਉਹਦੇ तरीका करवाना जी। ये क्वेश्चन है अपने को, ये 10th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख लो जी। फाइंड द फोरियर सीरीज़ ऑफ ई दी पावर एक्स इन -पाई तो लैके पाई तक, और आ फोरियर सीरीज़ आप प्रूव करनी है जी, कि फोरियर सीरीज़ आ बनेगी अपने को।
तो देखो फटाफट आप ए नॉट कढ़ लीए पहला। इत्थे एफ एक्स की वैल्यू दी हुई हैगी आ ई दी पावर एक्स, तो उवें सी दी फोरियर सीरीज़ दा फॉर्मूला लिख लांगे। नाउ एल कितना पहला एल कढ़ लईदा हुंदा, ये आऊगा अपॉन टू ए पाई आ गया। नाउ एफ एक्स लिख लवांगे आप ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई पाई कट गया जी, प्लस समेशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स, वो भी पाई पाई कैंसल हो गया। नाउ फिर ए नॉट कटांगे, नंबरिंग 1 पा लेने, बस आप ए नॉट ए एन तो बी एन की वैल्यूज़ कढ़नी है। ए नॉट हो गया 1 अपॉन एल माइनस पाई टू पाई ई दी पावर एक्स डी एक्स। हुण जो ये ऑड ईवन फंक्शन नहीं चैक कर सकते आप, क्यों? क्योंकि जे एफ ऑफ एक्स ई दी पावर एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स ई दी पावर माइनस एक्स, ये 1 अपॉन ई दी पावर एक्स हो गया, ना तो इक्वल आ रहा ना ही नैगेटिव पा के इक्वल बनना। ये नाइदर ईवन नॉर ऑड है, कुछ नहीं कर सकते। जे कुछ नहीं कर सकते प्रॉपर सॉल्व करना पैना। ई दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन की बन गई ई दी पावर एक्स माइनस पाई टू पाई, ये बन गया 1 अपॉन पाई ई दी पावर पाई माइनस ई दी पावर माइनस पाई, ये आ गया। वैसे जो चीज़ आप प्रूव करनी है स्टेटमेंट दे विच ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ए नॉट का अपना आंसर बन रहा। कई बार की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ आंसर इदां गिवन ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ साइन हाइपरबोलिक एक्स आ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर माइनस एक्स बाई टू, ਤਾਂ साइन हाइपरबोलिक पाई हो जाएगा ई दी पावर पाई माइनस ई दी पावर माइनस पाई बाई टू, तो ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी ई दी पावर पाई ई दी पावर माइनस पाई इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक पाई। कई बार इदा होंदा कि इदा आंसर गिवन होंदा, तो ध्यान रखना कि इनू आपां इदा कन्वर्ट कर सकते हैं हाइपरबोलिक विच। उरे लोड़ नहीं हैगी बिकॉज उरे आंसर जो स्टेटमेंट प्रूव करना आपां ने ये इसी प्रकार आपां नूं गिवन। तो देखो ए नॉट निकल गया, हुण आपां कढ़ना हैगा ए एन। ए एन आ गया 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई ई दी पावर एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। हुण इत्थे गल दसनी है इहदे विच जी, हुण ये काम तो लंबा होगा इहदे विच जी। इहदे नाल 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होती है, फिर बाद चों आई बनेगा, फिर आई बनेगा, फिर एक पासे ट्रांसपोजिंग करनी होती है। मैं करके दिखा रहा किवें। इहदी बजाय तुहानूं प्लस टू वाला तरीका मैं रिवाइज करवा रहा, वो किवें ते नोट पा लियो। और सीगा ई दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। आई मनना होंदा पहला, ये फस्ट फंक्शन, ये सैकेंड सॉरी ये फस्ट फंक्शन होगा, ये सैकेंड। पहला फस्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फस्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये जो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, पिछे देखा सी अपने डेरिवेटिव किसी का खत्म नहीं हो रहा। ये विचों माइनस माइनस प्लस कर लिया, ये बन गया कॉस बी एक्स ई दी पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। ये भी पहला साइन एज इट इज़ साइन बी एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फस्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इदा करते थे जी आप। ये दोबारा आई बन जाऊगा जी, मतलब आई इक्वल टू कॉस बी एक्स ई दी पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस ये बनेगा बी अपॉन ए स्केयर साइन बी एक्स ई दी पावर ए एक्स
ए बन जाएगा माइनस बी स्केयर अपॉन ए स्केयर आई। मैं थोड़ा स्टैप शॉर्टकट मार रहा। आई आप एक पासे इकट्ठा कर लवेंगे, इकट्ठा करके नीचों ए स्केयर एलसीएम लैके कैंसल हो जाऊगा जी। तो आई का आंसर ओवरऑल बन जाएगा ये चों ई दी पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये अपना आंसर आ जाएगा। हुण जिहड़ी गल कह रहे हैं कि तो काम बहुत लंबा चला जाएगा, तो आप की करांगे कि यह दा डायरैक्ट रिजल्ट आपां याद रखना। वैसे +2 विच जिहड़े बच्चे कॉम्पीटिशन की तैयारी करते थे वो डायरैक्ट रिजल्ट याद करते थे। ये डायरैक्ट रिजल्ट आप याद करना। हुण डायरैक्ट रिजल्ट आप किवें याद करना है, उसका तरीका हैगा कुछ वो करन लगे जी। जिवें एक ये फॉर्मूला इसका डायरैक्ट रिजल्ट याद रखना, मैं लिख के दिखा रहा जी कि ई दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। डायरैक्ट रिजल्ट किवें आऊगा, पहला ई दी पावर ए एक्स तो कॉमन आऊगी, जे पहला कॉस आ पहला कॉस पाउणा, अगे टर्म आ कित्थों आई आ, मैं तां प्रूव किया कि तुहानूं फॉर्मूला याद रखना सौखा रहे। यह टर्म कित्थों बनी आ, यह पहले दा डेरीवेटिव करके ही आह टर्म बनी आ। प्लस क्यों आया, बिकॉज कॉस का डेरीवेटिव माइनस आ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इत्थों ही याद रखना आपने, अगे कॉस का डेरीवेटिव ये बनेगा बी साइन बी एक्स। प्लस क्यों आया, बिकॉज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के विच माइनस आ, डेरीवेटिव माइनस आ गया प्लस हो गया। तो पहले नाल ए पाउणा, दूजे नाल तो बी आया। बी क्यों आया, बिकॉज डेरीवेटिव चों आया। वैसे ए क्यों आया सी, नाल एलसीएम लैके ए बनिया सीगा, तो नाल ए पाउणा हैगा अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। बाकी थोड़ी मर्जी आ, जिस तरह मैं याद कर लो। ये मैं तो इदा कह रहा कि दूजा फॉर्मूला भी थोड़ा याद करना सौखा रहेगा। अदरवाइज जे कन्फ्यूज हो जाओ तो प्रूफ करके देख लियो फटाफट जी, प्रूफ करके देख सकते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्मूले मिक्स हो जाते बच्चों के। एदा फॉर्मूला बच्चे आ मिक्स कर लेंगे, तो ही मैं तो तरीका दस रहा जी कि याद रखना तरीका कि प्रूफ पता होगा तो फॉर्मूले याद रखने सौखे रहेंगे। हुण इहदा किवें देखो किवें करांगे, पहला ई दी पावर ए एक्स, पहला तो साइन बी एक्स तो इदां ही आऊगा, अगे साइन का डेरीवेटिव बनेगा वो प्लस कॉस होंदा, माइनस बी कॉस बी एक्स। नैगेटिव क्यों आया, बिकॉज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माइनस होगा तो साइन का डेरीवेटिव प्लस कॉस होंदा, तो नैगेटिव ही रहेगा। एलसीएम लैके इत्थे ए आऊगा बटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये नीचे आउणी आउण। ये फॉर्मूले सीधे याद कर लेने आप, सौखा रहूगा जी। चलो मैं सीधा अप्लाई कर रहा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। पहला कंपेयरिंग कर लो, ए कितना 1, बी कितना n, तो की आऊगा ये 1 अपॉन पाई, पहला e दी पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स बटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये सीधा फॉर्मूला याद कर लेना आप, ए माइनस पाई तो पाई है। बाकी लिमिटा भरांगे अपना आंसर बन जाऊगा। मैं लिमिटा भर रहा, लिमिट पुट की, पहला पाई पुट किया, सीधा शॉर्टकट मारांगे आप, वो देखो 1 अपॉन पाई, ए दी पावर पाई आ गया, पहला कॉस एन पाई माइनस 1 दी पावर एन साइन एन पाई 0, वो लोड़ नहीं है। नीचे कितना आ गया 1 प्लस एन स्केयर। ये आप लिमिट पुट की है। हुण लोअर पुट की है, ध्यान दो, ये आ गया माइनस पा के ए दी पावर माइनस पाई। हुण लोअर वैल्यू भरी आप, मैं लिख रहा स्टैप, ये बनेगा कॉस माइनस ऑफ एन पाई, बस कॉस जोड़ा होंगे है तो माइनस एब्जॉर्व करना था, जे एब्जॉर्व करेगा तो यह -1 दी पर एन, ये भरांगे आप एक्स नूं माइनस पाई, ये आ गया कॉस साइन माइनस एन पाई, साइन जो है वो एन पाई बाहर कढ़ देगा, माइनस बाहर कढ़ देगा, तो साइन एन पाई 0 होगा।
सीधे आप स्टैप लिख सकते हैं, ये भी 0 हो गया, ये आ गया -1 दी पावर n अपॉन 1 प्लस n स्केयर, ये आ गया -1 दी पावर n अपॉन पाई 1 प्लस n स्केयर। -1 दी पावर n अपॉन 1 प्लस n स्केयर कॉमन कट लिया, ये बन गया e दी पावर पाई माइनस e दी पावर माइनस पाई। यह ए आंदा आंसर आ गया। हुण नाओ फिर bn सॉल्व करांगे। 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई e दी पावर x, इत्थे आ जाऊगा साइन nx, पाई पाई कट जाऊगा। हुण इहदा फॉर्मूला किता आपां हुणे जी, 1 अपॉन पाई, पहला e दी पावर x बाहर आ गया, फिर a साइन nx माइनस b कॉस bx अपॉन a स्केयर प्लस b स्केयर, ये विच आपां लिमिटां पुट करांगे। पहला वांगू ही आ गया, ये आ गया जी अपने कोल 1 अपॉन पाई, पहला आपां लिमिट पुट की पाई 0 हो गया, ये आ गया -n -1 दी पावर n अपॉन 1 प्लस n स्केयर, लोअर लिमिट पुट की माइनस पाई, साइन 0 हो गया, ये -n -1 दी पावर n अपॉन 1 प्लस n स्केयर। हुण इहदे विचों कॉमन कढ लवांगे जी आपां, ये कॉमन कढ़िया जी, ये 1 अपॉन पाई, ये विचों कॉमन ही कढ़ लो चलो, -n -1 दी पावर n अपॉन पाई 1 प्लस n स्केयर, ये बन गया e दी पावर पाई माइनस e दी पावर माइनस पाई। ये आपां इह चों कॉमन कढ़िया। हुण सारे वैल्यू निकल गई, हुण नंबर 1 च पुट करांगे। देयरफॉर 1 बिकम्स, fx रख लवो चाहे fx की वैल्यू भर लवो, a0 बाई 2 e दी पावर पाई माइनस e दी पावर माइनस पाई अपॉन 2 पाई, अपॉन 2 सी नीचे 2 आ गया, प्लस समेशन n गोस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos nx। इस तो बाद आप फिर an की वैल्यू भरांगे। an की वैल्यू वो कढ़ी गई है, -1 दी पावर n e दी पावर पाई माइनस e दी पावर माइनस पाई पाई 1 प्लस n स्केयर, इत्थे आ जाएगा नाल cos nx, n गोस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगे आपां bn की वैल्यू भर देवांगे, ये आ गया जी -n -1 दी पावर n पाई 1 प्लस n स्केयर e दी पावर पाई e दी पावर माइनस पाई साइन nx, ये आ जाएगा। इस तो बाद वैसे उरे तक अपना आंसर ठीक है जी, क्योंकि फोरियर सीरीज कढ़ने वास्ते क्या उरे तक ठीक है अपना आंसर, पर उन्हें आंसर मैच कराने वास्ते कहा सीगा कि आंसर ही मैच करवाना हैगा, तो उहदे वास्ते फिर आप सॉल्व करांगे जी। ओके में जी e दी पावर पाई e दी पावर माइनस पाई अपॉन पाई हैगा, यह कॉन्सटेंट आ बिकॉज n नहीं है जी, ये टर्म तिन्ना चों बाहर निकल रही है जी, तो ये विचों भी e दी पावर पाई e दी पावर माइनस पाई अपॉन 2 पाई 1 अपॉन 2 समेशन n गोस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 दी पावर n अपॉन 1 प्लस n स्केयर cos nx। एक तो यह कॉमन कढ़िया तिन्हों विचों, दूजी गल इन्होंने दोनों समेशन इकट्ठा किया, जो समेशन इकट्ठा करांगे पहला आ चीज बच गई, अगले विचों आएगा -n -1 दी पावर n, जो आपां सॉल्व करने वास्ते क्या हैगा उहदे अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं आप। ये चों e दी पावर पाई e दी पावर माइनस पाई अपॉन 2 पाई, ये कॉमन आ गया, 1/2 समेशन n गोस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये -1 दी पावर n अपॉन 1 प्लस n स्केयर बाहर आ गया, ये आ गया cos nx माइनस n साइन nx, ये अपना आंसर है।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ +2 ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।